Hello friends, Assalamu alaikum. Again I'm in front of you my new lecture. First of all I would like to tell you that I would like to say that कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें. My channel name is Quick Space Topic. Yesterday I gave you the lecture regarding tenses. Uh, Now again I'm continuing from today that the was remain. Please wait. Well, friends, simple past tense. It usually I would like to tell that it happens in the past. The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Well, the activity which happened in the past, वो activity जो हमने past में की, मिसाल के तौर पर, for example, the work which he did in the last night, last morning. So he went to office yesterday like this. This is the example of simple past tense. Very simple. They took lecture in time. उन्होंने अपना lecture time पर लिया. Formula and example. Just come to the formula and example. Subject plus verb to. Verb to means verb की second form. He went to office yesterday. They took lecture in time. उन्होंने अपना lecture time पर लिया. फिर आ जाइए आपके इसके अगले उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. द वर्क विच वॉज कंटिन्यूइंग मीन्स past, it was happening in the past, like refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. Agar if you're talking about past continuous tense, that that it happened in the last night, last morning, 2 hours ago, 3 hours ago. Example, she was crying, वो रो रही थी. He was taking a class as I reached in school. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा था या पहुंचने वाला था, तो मैं जैसे मैं स्कूल पहुंचा वो अपना क्लास ले रहा था. ठीक है, थैंक यू. थर्ड वन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसका अभी भी कंटिन्यू चला. फॉर्मूला एग्जांपल. Past continuous tense formula is subject plus was, were plus present participle ing form. They were doing work. It means that they were doing work. वो अपना काम कर रहे थे. She was writing a letter. वो लेटर लिख रही थी. Let's come to the another types. Past perfect tense. The past perfect tense describe a completed activity in the past. ऐसी एक्टिविटी जो हमने पास्ट में कर ली है. इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज दैट एन एक्शन वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस. ये इस चीज़ पर मजबूर करता है, इस चीज़ पर जोर देता है कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया था ले लिया गया. जैसे कि आई हैड लर्न विद माई मिस्टेक, मैं अपनी गलतियों से सीखा था मीन्स पास्ट की बात हो रही है. पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसके फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल पर आ जाए. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. शी हैड डन वर्क, शी हैड गिवन वर्क, दे हैड स्पोकन लाया. उन्होंने झूठ बोला था, वो अपना काम दे चुके थे, वो अपना काम दे चुकी थी, अपना काम कर चुकी थी. फिर आ जाइए इसकी. लेट्स कम टू द अनदर डेफिनेशन. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज अ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. It means that वो काम जो हमने पास्ट में किया था वो चल रहा था पास्ट में. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स फॉर 2 आवर. हम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे. 2 घंटे से मूवी देख रहे थे. इस एग्जाम्पल और फॉर्मूला पर आते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस ING. He had been completing his assignment for the last 2 hours. वो अपनी असाइनमेंट कर चुकी थी 2 घंटे पहले. She had been finding the dress since morning. वो अपना ड्रेस ढूंढ रही थी सुबह से. अब आ जाइए इसकी. Let's come to another definition of simple future tense. The simple future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. Simple future tense वो चीज़ जो हम अभी नहीं है, मतलब होनी है. In future it will happen that. एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका देखते हैं. Let's come to the example. I will learn a new language. मैं न्यू लैंग्वेज सीखूँगा. इसकी एग्जाम्पल और फॉर्मूला पे आ जाते हैं मज़ीद. He will attend the meeting tomorrow. अपनी मीटिंग वो अटेंड करेगा कल. Means the work which we have to do after 2 hours, tomorrow, day after tomorrow, or in the next week, in the next month, it will have to happen in the future. ये simple future tense है.
अब आ जाइए इसके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस the action that will be ongoing at some time in the future. It is also called future progressive tense. Future continuous tense हम कहते हैं कहलाता है एक्शन चल रहा है या होगा फ्यूचर में, इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे कि वो बातें कर रहा होगा, ही विल बी इंजॉइंग द हॉलीडेज इन दिसंबर, वो अपनी छुट्टियां दिसंबर में इंजॉय कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्मूला एंड एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म। शी विल बी लर्निंग फ्रेंच, वो इंग्लिश पढ़ेगी, फ्यूचर में पढ़ेगी। कब पढ़ेगी? वी डोंट नो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ जाइए। लेट्स कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस दैट आर कंप्लीट, इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है। दीज एक्शंस हैव नॉट येट ऑकर्ड बट विल ऑकर एंड बी फिनिश इन द फ्यूचर। These actions have not yet occurred, मतलब हुए नहीं हैं, will occur, होंगे, and finish in the future, और complete होंगे फ्यूचर में। जैसे कि when he leaves, जैसे ही वो गया, they will have finished the work, they will have finished the movie। जैसे ही वो यहाँ से गया, जितनी जगह से गया, काम से गया, they will have finished, वो अपना काम ख़त्म कर लेंगे, मूवी ख़त्म कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेट्स कम टू द न्यू type. The future perfect continuous, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describe action that will continue up till a point in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाता है। ऐसा टेंस जो डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शन को जो कि फ्यूचर में होने वाला है, हुआ नहीं है। ये विल हैव बीन इसकी एग्जांपल पर आई। लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। He will have been watching the football match for over 50 minutes. 50 मिनट से अपना मैच फुटबॉल का देख रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल और फार्मूला पर आ जाएँ। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल एंड फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट फॉर्म प्लस टाइम रेफरेंस। He will have been learning French for 2 weeks. वो लैंग्वेज पढ़ रहा होगा 2 वीक से। Past future, let's come to the another types. Future in the past. Future in the past is used to express the idea that in past you thought something would happen in the future. अगर past future tense की बात करते हैं, past future tense इस मतलब ऐसा टेंस जो पास्ट में हुआ और इसको एक्सप्रेस करना है, हमारे जहन में आया कि उसको एक्सप्लेन करना है फ्यूचर में। कैसे? आई टोल्ड दैट आई वुड लीव इन 1 hour, मैंने आपको कहा था मैं 1 घंटे में चला जाऊँगा, मैंने आपको कहा था। Let's come to the formula and example. Subject plus would plus verb की first form. I told that I would leave in 1 hour. मैंने आपको कहा था मैं घंटे में छोड़ दूँगा। Past future. Let's come to the new types of tenses. Past future continuous tense. It is used to express the idea that in past an action event was predicted, planned, promised, expected, or obliged to be happening, being continued in a certain period in the future of past. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस आइडिया, ऐसा आइडिया जो पास्ट में लेना था, प्रिडिक्ट किया था, हमने पेशन कोई की थी, प्लान किया था, प्रॉमिस किया था, एक्सपेक्ट किया था, या उस चीज़ पर होने वाला था इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर ऑफ पास्ट। आई टोल्ड दैट आई वुड बी डूइंग माई होमवर्क ऑल डे लॉन्ग, मैंने आपको कहा था मैं अपना होमवर्क कर लूँगा पूरे दिन में। पास्ट, लेट्स कम टू द एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस आईएनजी। आई टोल्ड दैट आई वुड बी डूइंग माई होमवर्क ऑल डे लॉन्ग, सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी लास्ट बताई है आपकी। पास्ट फ्यूचर पर लेट्स कम टू द न्यू टाइप्स ऑफ पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट इज़ रिलेटिंग टू और कंस्टिट्यूटिंग अ वर्ब that is traditionally formed in English with would have or should have and denotes an action or state completed at a time formally in this prospect. अगर हम इसकी बात करते हैं, ये ऐसा टेंस जो हमने किसी को कहा पास्ट में किया। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लेते हैं, शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, उसने कहा था वो अपना काम कर लेगी, असाइनमेंट कर लेगी। इसकी एग्जांपल और फॉर्मूले पर आ जाइए। लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ एंड फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और वुड हैव। शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट,
अब इसकी न्यू एग्जाम्पल, न्यू टाइप्स पर आ जाइए. पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज द पास्ट tense of the most complex in the composition of tense. It is because of this tense in describing a position that will be taking place and are still continuing in the past. अगर हम पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो ये आपका काम हो जाना चाहिए था, मतलब नहीं हुआ, हो जाना चाहिए. पास्ट फ्यूचर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई शुड हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 hours बाय दैट टाइम. उसने कहा मैं अपना काम कर लेना चाहिए था इधर उस वक्त तक. Come to the example and formula. Subject plus would have been plus verb ing. He said that I should have been working for 2 hours by that time. ये वही example जो हम कर रहे थे. That's end of my presentation.